Okay, students, right now we will discuss the fission reaction. In this topic, we will learn the historical background, definition, equation, explanation, analysis of the energy, fission chain reaction, and how to control the fission chain reaction and applications of the fission reaction in our daily life. Going to our main topic, you should know about the nuclear reactions. Basically, the nuclear reactions are the reactions in which the heavy or the smaller nucleus are involved. There are two basic types of the nuclear reactions. First one is nuclear fission reaction, and the second one is nuclear fusion reaction. First of all, we will discuss the nuclear fission reaction. And in the historical background of the fission reaction, it was first observed in 1939 by the Otto Hahn and Fritz Strassmann. और अगर हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम किसी भी हैवी न्यूक्लाई के ऊपर जब किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज में सेपरेट हो जाता है और इस सेपरेटिंग के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हैवी न्यूक्लियाई टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज में सेपरेट हो जाए, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस. Okay, next we will move toward the equation of the fission reaction, how it is represented by using an equation. You can see first of all we have a neutron. When neutron is bombardment on the uranium 23592, basically it is a heavy nuclei, we get U23692, and here you can see a star. बेसिकली जो स्टार है वो इसकी इंटरमीडिएट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इंटरमीडिएट स्टेट, और वी कैन ऑल्सो से डैट इट इज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और अनस्टेबल स्टेट में सिर्फ ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहता है और उसके बाद ही टू स्मॉल न्यूक्लियाइज के अंदर सेपरेट हो जाता है. एंड देन वी विल गेट एक्स एंड वाई एंड न्यूट्रॉन्स. हियर एक्स एंड वाई आर नोन एज फिशन फ्रेगमेंट्स, और वी कैन से डैट दीज आर बेसिकली द टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज इन विच अ हैवी न्यूक्लियाई विल बी separate, and in the form of the neutrons we will get the large amount of the energy. Okay, now we will discuss the explanation of the nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction basically तब होता है जब कोई भी हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 है, जब वो कोई भी न्यूट्रॉन्स को, स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है कि वो फ़ौरन से अनस्टेबल हो जाते हैं. अनस्टेबल होने के बाद वो फिशन फ्रेगमेंट्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, और साथ ही जो है इनके 2 to 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन जो इवेंट है वो रिलीज़ होते हैं. ओके, हियर वी हैव द इक्वेशन ऑफ द फिशन रिएक्शन हैपनिंग इन द यूरेनियम 23592. जब यूरेनियम 23592 जो कि हैवी न्यूक्लियाई है उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो वो टू फिशन फ्रेगमेंट्स के अंदर सेपरेट हो गया. फर्स्ट वन इज़ बेरियम एंड द सेकंड वन इज़ क्रिप्टॉन, एंड इन फर्दर वी आर हैविंग द 3 more न्यूट्रॉन्स. और वन मोर थिंग वी कैन ऑब्जर्व इज़ डैट कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हमेशा लेस होगा एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस. यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट बाय एडिंग द atomic masses and comparing the atomic numbers. We can say that the total mass of the product is less than the total mass of the reactant. As we said earlier, the nuclear fission reaction causes the release of the large amount of the energy. When we make the analysis of the energy, we can say that 2.74 neutrons are released per event, and in this way 200 mega electron volt energy is released. When we make the analysis with the coal, और जब हम 1 ton of coal को burn करते हैं तो 3.6 into 10 exponent 10 जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है. लेकिन जब 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 के अंदर फिशन रिएक्शन हैपन करता है तो 6.7 into 10 exponent 11 जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है. सो वी कैन मेक एन एनालिसिस लाइक 1 ton of coal produces less energy as compared to the fission reaction happening in the 1 kg of uranium 235. Okay, next we will discuss the fission chain reaction. As we see in the previous equation, when the fission reaction happens in the uranium 235, 3 neutrons are released. Okay, when we use these neutrons further, we can produce the more fission reaction like 3 neutrons are released. और अगर हम इसमें से कोई एक न्यूट्रॉन को यूज़ करके अगेन यूरेनियम 235 के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट करवाएं तो फर्दर क्या होगा, वी कैन गेट द मोर 3 neutrons, and in this way this reaction will be continued. That's why such type of the reaction is known as fission chain reaction. Here you can see a basic diagram of the fission chain reaction in which we took a neutron, और जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई यूरेनियम 235 के अंदर तो ये 2 फिशन फ्रेगमेंट्स क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर सेपरेट हो गया, और फर्दर हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले, और हमने उसमें से एक न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स मिले. जब सेकेंड न्यूट्रॉन की भी बम्बार्डमेंट करवाई तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स मिले, और जब थर्ड न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स मिले. इस तरह से जो हमें फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स मिलते जा रहे हैं उनकी फर्दर हम यूरेनियम 235 के ऊपर
ऊपर जैसे जैसे बम्बार्टमेंट करवाते जाएंगे तो क्या होगा कि इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूड रहेगा। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज फिशन चेन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये इतना रैपिड होता है समटाइम्स कि ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इट कैन कॉज एन एक्सप्लोजन। सो हम इस तरह के रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो लिबरेट होते हैं फिशन रिएक्शंस के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं और इस तरह से ये जो चेन रिएक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। Okay, in last we have an application of the fission chain reaction in our daily life. As we said earlier in the definition of the fission chain reaction कि जो fission chain reaction है उसके अंदर large amount of heat energy produced होती है। तो इस large amount of heat energy को हम further electricity produce करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम heat energy को electrical energy में convert करके further अपने daily life के अंदर यूज़ करते हैं।